राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस्कॉन बलराम देश में शुक्रवार के सायंकाल के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ग्रीष्म ऋतु, which means summer has started. So Supreme Personality of Godhead Lord Sri Krishna, Radha Bharineshwar, Sri Krishna Balram, Sri Gaur Nitai, Jagannath Baldev Subhadra, Narsingadev, all they are also feeling the heat of the summer. So the festival started with Chandan Yatra. Chandan is to cool. It's very cooling. So Chandan Yatra festival start as a beginning of the summer season. And as the heat of the summer become more scorching, the next festival is Snan Yatra of Jagannath. Lot of water to cool the body of Lord. And after that, even when rainy season comes and water won't work, then there is a Rath Yatra. The Lord comes out to have a fresh breeze to cool down himself. And then still that is not working, then is a Jhulan Yatra. There's a swing festival. So these are all the festival of summer season. And among these festival, one festival is Nauka Vihar. Nauka means boat and Vihar means having a pastime in a river, pond or ocean in a boat. It's called Nauka Vihar. And Sri Krishna has always wonderful pastime of called boat festival. And here in our Skan Bahrain we have a miniature of the boat festival here with a sort of Radha Kund pond is made, and there is a swan boat is made, and the transcendental scene is there. Then the Radha Bharineshwar Vijay Murti or Utsav Murti, they come here, and we are so fortunate to see the boat festival or Nauka Vihar. So this is the scene only relished in Vrindavan. This boat festival of Radha Krishna is only in Vrindavan.
nowhere else. Not in Mathura, not in Dwarka, nowhere else, only in Vrindavan. Such pastimes are only in Vrindavan. So today our satsang is just to be absorbed in the consciousness of Vrindavan. Have a meditative mood of focusing our consciousness and visualizing within our heart the Vrindavan Dham. And our Acharya Srila Narottam Das Thakur, who is personification of Gaura Prem, is a personification of Gaura Prema. For Narottam Das Thakur, Sri Chaitanya Mahaprabhu has deposited Krishna Prem in Padma River in Bangladesh and asked Nityananda Prabhu to remind and bring Narottam to take bath in Padma River and receive Krishna Prem. So within the heart of Narottam Das Thakur, there is a personification of the Gaura Prema. And Srila Narottam Das Thakur, his all bhajans which are in simple sweet Bengali, but they are complete coin-sized summary of all Vedic literature. So today we will sing one bhajan of Narottam Das Thakur, which is meditation on Vrindavan. And then we will relish and we transport our consciousness to Vrindavan or make our heart to Vrindavan. So are you ready for that? So, the first line of the bhajan I am telling you, then our devotees will sing the bhajan. You can sing with them, but before you sing, you remember this, then you can sing. And then you can sing, then you can relish. And then we will finish the first line, then we will discuss some pastime, what you can think about when you are reading this or hearing this line. So you tell after me, Vrindavana, Ramaya Sthana, Divya Chintamani Dhama. If you have mobile and then Vaishno bhajan, then you can get this bhajan on the WhatsApp already shared. It is shared on WhatsApp to you. You have to look in that. So I have read the first line. Actually, this line has to be read not up till here. The rhythm is up till next line. 1.5 line together is a complete rhythm. So have all you understood these 3 lines? Vrindavan Ramaya Sthan, Divya Chintamani Dham, and then Ratana Mandira Manohara. What is the next line? Ratana Mandala Manohar. This is the first couplet of the bhajan. The second couplet is Abrata Kalendi Nire. Abrata Kalendi Nire. Raja Hansa Keli Kore. Tahe Shobhe Kanaka Kamala. तो इतना अभी गाएंगे. This much we will sing now, and then we will discuss this and then go to the next. Is it okay? Everybody understood this? Okay. Yes.
वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम दर्शनम मनोहर। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम मेरा मनोहर। अवेद काले नीले रे राजा हंस केली करे शोभे कनक कमल। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। हरे कृष्णा। वृंदावन रमय स्थान। So generally Vrindavan means forest of Vrinda Devi. Ban means forest. Ban means forest and Vrinda means Tulsi. Tulsi Maharani is called Vrinda Devi and forest of Vrinda Devi is called Vrindavan. And generally Vrindavan is one of the 12 forests of Brij Mandal. Say 84 कोस ब्रज मंडल 84 कोस ब्रज मंडल उसमें 12 वन है, the 12 forest and Jamuna is in the middle. One of the forest is Vrindavan. Vrindavan एक वन का नाम है, but generally when we say Vrindavan we mean whole Brij. सारे ब्रज को भी वृंदावन कहते हैं एक दृष्टि से। कहां जा रहे हो? वृंदावन। इट मीन्स यू आल्सो गो टू गोवर्धन, यू आल्सो गो टू बरसाना, यू आल्सो गो टू अदर प्लेसेस। हम कहां गए थे? वृंदावन गए थे, ऐसे कहते हैं। तो वृंदावन की दो माना है, देयर आर टू मीनिंग्स फॉर वृंदावन। वृंदावन का मतलब प्रॉपर वृंदावन, वृंदावन का मतलब पूरा ब्रज। रम्य स्थान का मतलब रम्य स्थान, रम्य मीन्स फॉर प्लेजर। जैसे राम है, द वर्ड राम, राम मीन्स रिजर्वायर ऑफ प्लेजर। राम मतलब आनंद। रम्य मीन्स आनंद का, स्थान मीन्स प्लेस। वृंदावन भगवान के आनंद का स्थान है। वृंदावन कैसा स्थान है? भगवान के आनंद का स्थान है। भगवान क्या करते हैं वहां? आनंद की लीला करते हैं। वैसे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में या ब्रज में केवल 11 वर्ष रहे। ओनली 11 years ही स्टेड देयर। और 3 जगह 3 रमण किया या 3 लीलाएं की। फर्स्ट ऑफ ऑल 3.5 years, पहले 3.5 साल गोकुल में क्या किया? बाल लीलाएं। किसके लिए? वात्सल्य प्रेम के भक्तों को आनंद देने के लिए। टू गिव द रेलिशमेंट एंड प्लेजर टू द डिवोटीज हु लव कृष्णा एज
their darling son. There's a first pastime. Then Krishna has 3.5 years over pastime with his cowherd boys. That is in Vrindavan. That is called Sakha Prem, a friendship ka leela. And then again almost 4 years, say from 7 years to 11 years, little less than 11 years, Krishna has passed time with gopis. That is for the conjugal melo. So Vrindavan का भगवान का रमन 3 प्रकार का है. Raman means enjoyment. Raman means relishment. The devotees who love Krishna as their darling son, they relish the pastime in Gokul. And of all those pastimes, the best and most relishing pastime is Damodar Leela. आप देखो दामोदर महीने में दामोदर लीला सुनते हैं ना सब. और उससे भी ज्यादा नटखट कृष्ण की लीला है माखन चोरी की लीला. ये काय के लिए है? कृष्ण वृंदावन रम्य स्थान. एक बार प्रभुपाद जी को किसी अपने शिष्यों ने पूछा कि हम एक मंदिर राधा कुंड में बनाना चाहते हैं. प्रभुपाद क्या करोगे? What you will do there? बोला प्रचार करेंगे. बोला ना, राधा कुंड इज नॉट फॉर प्रीचिंग, इट्स फॉर रेलिशमेंट. ये प्रचार के लिए नहीं है, इट्स फॉर रेलिशमेंट. रम्य स्थान है, वहां भगवान की लीला का चिंतन करो, दर्शन करो, श्रवण करो. मैं आपको 1-2 लीलाएं, बाल लीलाएं 1-2 बताता हूं कि रम्य स्थान कैसा है वृंदावन. गोपियां यशोदा को शिकायत करने आती हैं. क्या कहती हैं आके? एक श्लोक है भागवत के 10वें स्कंद के, मेरे ख्याल में 8वें अध्याय का श्लोक है, 29वां मोस्ट प्रोबेबली. क्या कहती हैं गोपियां आके? असम्या मुंचान वस्तान. असम्य का मतलब असम्यक, आप समझ, अनटाइमली. अब टाइम नहीं हुआ है. मुंचन का मतलब क्या है? खोलना. वत्सान का मतलब बछड़े. आपको मालूम है वत्स को बछड़े को कहते हैं. द काफ इज कॉल्ड वत्स. क्यों कहते हैं वत्स? भगवान को कहते हैं भक्त वत्सल. सुना है भक्त वत्सल भगवान की जय. मतलब क्या है इसका? कभी सोचा है? वत्स मीन्स न्यूली बॉर्न काफ. गाय जब नए बछड़े को जन्म देती है कितनी पीड़ा होती होगी, हाउ मच पेनफुल इट इज. लेकिन जैसे बछड़े को जन्म देती है एकदम उठेगी और बछड़े को चाटेगी. इट्स ऑल डर्टी पस ब्लड एंड मां उसको एकदम साफ कर देगी चाट के. और जब तक बछड़ा खड़ा नहीं होगा और दूध नहीं पिएगा तब तक चाटती रहेगी. देखा है? ऐसे भगवान अपने हम जैसे पतित भक्तों के सारे दोषों को चाट के, जब तक हम हरे कृष्ण महामंत्र का अमृत नहीं पिए तब तक चाटते रहते. That is the one meaning of भक्त वत्सल. हम बदमाशी करें, नहीं आए मंदिर में, आए तो नहीं सुने कथा, बाहर जाके बैठे, लेकिन फिर भी भगवान कहते नहीं, इसको सुधारना है, इसको अमृत पिलाना है. दूसरा वत्स का अर्थ क्या है? अगर गाय का बछड़े को जन्म जंगल में दे दे और आपको कहा जाए गाय लाओ, तो गाय आप लाओ नहीं ला सकते. तो किसी अच्छे ग्वाले से पूछो कि नई ब्याई हुई गाय को जंगल से कैसे लाओगे? The cow which has given just a birth to the calf, how will you bring it home? क्या रास्ता है? बछड़े को कंधे के उठाओ, आप चलो, गाय पीछे भागती आएगी. ये मालूम है? दिस इज अनदर मीनिंग ऑफ द भक्त वत्सल. जहां भक्त जाएगा वहां भगवान भागता हुआ आएगा. और श्रील प्रभुपाद जी ऐसे भक्त थे,
वृंदावन से अमेरिका चले गए, भगवान जगन्नाथ भागते हुए सैन फ्रांसिस्को पहुंच गए। और एक नहीं, बहुत सारे भगवान भागते हुए प्रभुपाद जी के पीछे पाश्चात्य देश चले गए। गए कि नहीं? ये है भक्त वत्सल की मान। भक्तों के दोषों को भगवान धो लेते हैं, और जहां भक्त जाता है वहां भगवान भाग के चले जाते हैं, उसको सहायता करने के लिए, भगवान की सेवा करने के। तो भगवान भक्त वत्सल है। मुंचान असमय वस्तान वत्सान। गोपी क्या कह रही है? अरे यशोदा, तेरा लाला हमारे घर में आता है, बिना गाय दुहने का समय नहीं हुआ है अभी, बछड़े को खोल देता है। तो इसमें ये शिकायत में क्या बात है? क्या मतलब, क्या कौन सा लीला है? एक गोपी थी, बड़ी होशियार थी। उसने क्या किया, माखन का मटका लिया, अपनी कुर्सी के नीचे छिपा लिया, अपने मूड़े के नीचे, और ऊपर ऐसे बैठ गई। कन्हैया, ग्वाल बालों के साथ बुलाया, इधर आओ। क्या है गोपी? मैंने सुना है माखन कहीं भी रखा हो आपको पता लग जाता है, यू नो वेयर दिस द बटर। आपको रेडार फिट है, पता लगता है माखन कहां है। बोला हाँ पता लगता है। बोला आज तुम माखन मेरे घर में ढूंढ के दिखाओ। कृष्ण ने कहा माखन तो इसके सोफे के नीचे है, अब क्या करना चाहिए? कृष्ण ने ग्वाल बाल को कहा इसके बछड़े है ना, खोलो। वो बछड़े खोले, बछड़ों ने गाय का दूध पीना शुरू किया। अरे गोपी पागल, देखो बछड़े दूध पी गए, कब दूध निकालेगी? हाँ, वो भागी दूध निकाल, बछड़ों को बांधने के लिए। गोपी गई उधर, और यहां मटका निकाल के उसी सोफे के बैठ के खाने लगा। गोपी वापस आई, कहती अरे कन्हैया ये क्या? बोला तुमने कहा मक्खन ढूंढ के निकालो, मैंने निकाल लिया। भी कहा मक्खन पड़ा है। अब इसका दूसरा माना क्या है? ये तो है लीला, लेकिन इसका अर्थ दूसरा क्या है? वत्सान का मतलब भक्त, मुंचनते का मतलब मुक्त करना, असमय का मतलब अभी वो मुक्ति के लायक नहीं है, लेकिन भक्त बनने हैं तो भगवान ने पहले ही उनको मुक्त कर दिया, जाओ भगवान के धाम। दिस इज दी अनदर मीनिंग ऑफ दिस लाइन। तो वो गोपी कहती है संजात कोपान, हम क्रोध करते हैं और ये हंसता है। हम क्रोध करते हैं तो ये हंसता है और हमारा क्रोध समाप्त हो जाता है। फिर दूसरी लाइन में लिखा है स्तेन, स्तेन, और फिर लिखा है स्तेन पय। पय का मतलब दूध। पाइसम कहते हैं ना, पाइसम आपका शब्द है, पाइसम दूध ना। स्तेन का मतलब चोरी करना। स्तेन, स्तेन पाय, पाई, पय, दूध को चोरी करता है। और कौन से दूध को? बोला जो हम बहुत अच्छा अपने पति या पुत्र के लिए अलग निकाल के रखती हैं, उसी को चोरी करता है। बेचने वाले को चोरी नहीं करता है। जो अति उत्तम हम अपने पति के लिए या पुत्र के लिए रखते हैं, उसको चोरी करता है, और नए अंदाज से रोज नया नमूना चोरी का करता है। बोला कौन सी लीला है? वृंदावन रम्य स्थान है। एक ही श्लोक की बात करेंगे, ज्यादा नहीं, इसकी कथा करेंगे। गोपी ने कृष्ण को कहा कि आज हमारे घर में दूध है, बहुत अच्छा, मटके में टांगा हुआ है, तुम आके पी लो। और इससे आगे पय है, पय के आगे है दधी, दही, और दूध हमारे घर से चोरी करता है। तो दूध कैसे चोरी करता है? एक गोपी के घर में सीधा कृष्ण चला गया, बड़ा दही जमा हुआ था, ऊपर मलाई ऐसे उठा के खाने लगा। गोपी ने कहा अरे कन्हैया तू मेरे घर में दही क्यों खाता? बोला मेरा घर है, तेरा घर है। अरे तेरा घर नहीं है, मेरा घर है। बोला तेरा घर मेरा घर, तेरा घर मेरा घर एक बात है, इसमें क्या है? बोला दही क्यों खा रहा है? बोला कौन खा रहा है? अरे तू बूढ़ी हो गई है, न तेरी बहू न तेरी बेटी, इतनी सारी दही में चूंटियां पड़ गई थी,
एंट पड़ गई थी। मैंने कहा तुम्हारे दही से एंट निकाल लूं, तेरी सेवा कर रहा हूं, कौन तेरा दही खाएगा बुढ़िया। अरे बड़ा चतुर है, दही से एंट निकाल रहा है, तो ये चूंटी निकाल रहा है, तो फिर तेरे मुंह में दही कैसे लगा। अरे गोपी, एक चूंटी यहां से चढ़ी, यहां से गई, यहां से गई, इधर पहुंच गई। अब मैं ऐसे चूंटी को हो हिलाया, यहां से हटाया, दही मुंह में लग गया, मैं खाया नहीं। अरे गोपी बोलती है तुम चोरी करने आया। मैया तेरी सेवा करने आया। तेरा है कौन तेरी सेवा करने वाला, तेरा दही में संभाल के। बोला चूंटियां गई कहां, बोला बिल में चली गई सब, चूंटी तो थी नहीं वहां। और उसका दिमाग हिमक भुला दिया। दही दूध चोरी करने के लिए ग्वाल बालों के संग एक घर में कृष्ण चला गया। गोपी बड़ी होशियार थी। ऊपर दूध का मटका टांगा था और बहुत ऊपर उसमें एक बड़ा घंटा बांध दिया था। बोला चोरी करने आएगा, दूध के मटके को हाथ लगाएगा, घंटा बजेगा, हमको पता लग जाएगा, हम जाके पकड़ लेंगे। ग्वाल बालों के संग कृष्ण चला गया घर के अंदर। ऊपर चढ़ने के लिए 4 ग्वाल बालों को खड़ा किया, उसके ऊपर 2 को खड़ा किया, उसके ऊपर चढ़ा, और भी मटका ऊपर था। तब तक वो ब्राह्मण मधुमंगल जो है ना, वो कहता अरे कन्हैया गोपी बड़ी चालाक है, देखो घंटा है, ये घंटा बजेगा, मटका हिलेगा, गोपी आएगी, हमको पकड़ेगी। कृष्ण ने कहा चिंता मत करो। घंटाओं के देवताओं को कृष्ण ने कहा ए घंटों के देवता इधर आओ। घंटों का देवता कान में घंटे लगे हुए आके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला क्या हुक्म है भगवान। बोला तुम कौन हो। बोला मैं आपका सेवक हूं। बोला मैं कौन हूं। आप हमारे भगवान हैं। बोला तेरा धर्म क्या है। बोला आपकी आज्ञा का पालन करना। तो सुनो मत बजना। तो घंटे ने कहा नहीं बजेंगे, आपका आदेश है भगवान। अब ऊपर चढ़े, मटके को हाथ नहीं पहुंच रहा है। कृष्ण मटके को हाथ नहीं पहुंचता है, क्या करता है, एक बहुत लंबी लाठी रखता है, उसके ऊपर एक कील, उसके ऊपर एक पॉइंटेड वो कील लगा देता है, और मटके को ऐसे नीचे करके ठा करेगा तो मटका नीचे से फूटेगा, तो दूध ऊपर से नीचे गिरेगा। अब कृष्ण ने जैसे मटके को ठा मारा, घंटा नहीं बजा। दूध कहां गिरेगा बोलो, कृष्ण के ऊपर गिरा। और कृष्ण के ऊपर से गिर के दूध नीचे आया, तो ग्वाल बाल ऐसे खड़े खड़े हाथों से पकड़ के पीने लगे, तो घंटा जोर जोर से बजने लगा। अरे कृष्ण ने कहा तुमको कहा था मैं नहीं बजना, ये क्या कर रहे हो। बोला भगवान आपका अभिषेक हो तो घंटा बजना चाहिए। आज आपका अभिषेक हो रहा है और आज न बजे फिर कब बजेंगे। भगवान का अभिषेक हो रहा है। तब तक गोपियां आ गई चारों ओर से, घंटा बज गया। गोपियों ने पूरा घेर लिया घर को। अब ग्वाल बाल कहते कन्हैया क्या करेंगे। बोला जो गुरु करे वो चेला करे। बोला क्या करें। बोला सब मुंह में दूध भर लो। मुंह में दूध भर लिया। बोला क्या करना है। बोला जो गोपी सामने आए ना उसके मुंह में फू। और जैसे कोई गोपी सामने आए, सबके ऊपर ऐसे दूध मारा, किसी के आंखों में धूल नहीं झोंका, दूध झोंका। भगवान है, अगर आंखों में कुछ डालता है तो भी दूध ही डाला। हम तो लोगों की आंखों में धूल डालते। और सारी गोपियां बेचारी आंखें ऐसे कर ली, तब तक सब ग्वाल बाल भाग गए। कैसी लीला है भगवान की, ये तो मधुर लीलाएं ऐसे करता है। और तीसरी गोपी कहती है कि हमारे घर में आता है, छोटे बच्चों को चूंटी से जगा जाता है, आके उसको चूंटी मारता है, जगा देता है, और वो रोता है तब भाग जाता है। बोला ये क्या हुआ, क्यों भाई ऐसे क्यों चूंटी मारेगा। एक गोपी ने कृष्ण को बुलाया, इधर आओ। क्या है। बोला मेरे बच्चे को थोड़ा सा झूले में झुलाओ, इसको सुला दो, मेरे को काम है। बोला दोगी क्या। भाई मुफ्त में तो नहीं करूंगा काम ना, कुछ तो दोगी ना। बोला मक्खन खिलाऊंगी। अच्छा मक्खन देगी। हाँ दूंगी ना। तो बच्चे को कहते हैं कृष्ण सो जा मेरा भैया, तू बड़ा होएगा, मैं तेरे को साथ ले जाऊंगा, अपन गैया चराएंगे। बच्चा सो गया।
बोला माखन ला गोपी। अरे कन्हैया आज तो माखन निकला ही नहीं। अरे तो दही तो दे दे। दही में मक्खी पड़ गई। अरे छाछ है गोपी, छाछ पिला दे। लबान दे दो, लबान। गोपी ने कहा कुछ भी नहीं। अच्छा मुफ्त का काम कराती है। मेरे को कहा बच्चे को सुला दो। ये बच्चे को जगाता हूं वापस। दे मारी बच्चे को जोर से चूंटी। बच्चा रोने लगा। बोला ले अपना बच्चा वापस। देती दूध भी नहीं है, दही भी नहीं है, ऐसे मुफ्त में बच्चे का मैं सुलाऊं। हरे कृष्णा। अब ऐसे रम्य स्थान है वृंदावन। ग्वाल बालों के संग भी भगवान की ऐसे बहुत अद्भुत लीलाएं होती हैं, और गोपियों के संग में जो लीलाएं होती हैं उससे ज्यादा और मधुर लीलाएं होती हैं। ये वृंदावन रम्य स्थान है। वृंदावन इज प्लेस फॉर रिलिशमेंट। वहां जाओगे तो आप एब्जॉर्ब हो जाओगे कृष्ण की लीला में। लीला का मतलब है लयते इति लीला, टू बी कंप्लीटली एब्जॉर्ब, तलीन हो जाना लीला में। वृंदावन रम्य स्थान। लगता है रम्य स्थान है कि नहीं? ऐसी ऐसी कथाएं भगवान की प्रेम सुनने वाले कितना आनंद लेते होंगे। और दूसरी लाइन में क्या लिखा है? दिव्य चिंतामणि धाम। क्या है? चिंतामणि पार्क सद्मसु कल्प वृक्ष, है ना? तो ये चिंतामणि क्या है? दिव्य चिंतामणि धाम है। इसका मतलब वृंदावन, जो आप जाके वृंदावन देखते हैं, दैट वृंदावन यू गो एंड सी इज नॉट दी नॉर्मल पोर्शन ऑफ उत्तर प्रदेश। ये यूपी का हिस्सा नहीं है, ये इस धरती का टुकड़ा नहीं है। ये चिंतामणि धाम है। ये भगवान के लोक से आया है। ये पत्थर नहीं है, मिट्टी नहीं है, ये पेड़ नहीं है। वृंदावन की गाय सुरभि गाय है, वृंदावन के पेड़ कल्प वृक्ष है। चिंतामणि और जहां वहां का पत्थर चिंतामणि, मणि का मतलब इट्स ए ज्वेल, ज्वेल है ये। तो इसके ऊपर हम कल कथा बता रहे थे। वृंदावन का चिंतामणि धाम क्या है, इसका माना क्या है? आप सब तानसेन का नाम जानते हैं? तानसेन नाम सुना है? तानसेन शहंशाह अकबर की दरबार में बहुत सुंदर गाता था। ही वॉज द बेस्ट ऑफ द सिंगर इन द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। मालूम है? नहीं? 9 रतन अकबर के थे, उसमें एक तानसेन था। तो अकबर ने तानसेन से एक दिन पूछा, आप इतना अच्छा गाते कहां से सीखे हो? हु इज योर गुरु? बोला हरिदास। कहां है? वृंदावन में। बोला उसका हमको गान सुनना है। आई वॉन्ट टू लिसन टू हिज सॉन्ग एंड म्यूजिक। बोला चलो वृंदावन। बोला उनको वहां बुलाओ। बोला महात्मा यहां नहीं आते। बोला हम चलते हैं। अकबर केम टू वृंदावन। हरिदास जी यमुना के किनारे पे भगवान के सुमरन में थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अकबर ने तानसेन को कहा उसको कहो गाए, हमको गा के सुनाए। तानसेन ने कहा गुरु को कैसे बोलूं गाओ? हाउ कैन आई ऑर्डर द स्पिरिचुअल मास्टर प्लीज ओबलाइज मी, एंड हाउ आई कैन से नो टू द एम्परर? भाई राजा को कैसे बोलूंगा नहीं गाऊंगा? तो तानसेन बहुत इंटेलिजेंट था। उसने क्या किया? स्वयं ने गाने शुरू किए। ही स्टार्टेड सिंगिंग हिमसेल्फ, और सिंगिंग करते हुए सुर ताल को बिगाड़ दिया, गलत गाया। ही sang in a wrong tune. And हरिदास immediately said, oh wrong, तानसेन गलत है, ऐसे नहीं गाते हैं, इसको ऐसे गाना चाहिए।
और जैसे हरिदास ने गाना शुरू किया, जमुना का बहना बंद हो गया, पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया, चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स स्टॉप, पेड़ों का हिलना बंद हो गया। एक दिव्य वातावरण ऐसा हो गया कि अकबर वाज कंप्लीटली एस्टॉनिश्ड एंड सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो गया, अरे तानसेन ये तुमसे लाख बार अच्छा गाता है। सिंगिंग ऑफ हरिदास इज मिलियन टाइम बेटर देन यू। तानसेन कहते हैं महाराज आप सत्य कहते हैं, हाउ कैन यू कंपेयर मी विथ हिम, मेरी तुलना कैसे करोगे इसके साथ, मैं तो शहंशाह हिंद के लिए गाता हूं और ये भगवान जगन्नाथ के लिए गाता है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो भगवान के लिए गाता है उसका क्या प्रेम है उसको कौन समझ सकता है। तो हमारे और इसके गाने में बहुत बड़ा अंतर है। अकबर को इंट्रोड्यूस कराया कि ये हमारा शहंशाह है, आपके भजन को सुन के बड़ा प्रसन्न हुआ है। तो अकबर ने कह दिया आपकी क्या सेवा करें महाराज, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम प्लीज, आस्क मी व्हाट आई कैन डू फॉर यू, आपके लिए मैं क्या करूं। हरिदास ने कहा वो एक केशी घाट है ना जमुना के किनारे, वहां एक पत्थर का टुकड़ा टूट गया, उसकी रिपेयर करा दो। अब इतने बड़े एम्परर को एक छोटा पत्थर का टुकड़ा, वो भी एक स्टेयर का, जो सीढ़ी आती है नीचे जमुना में जाने के लिए, उसमें एक छोटा पत्थर का टुकड़ा है, वो टूट गया कोना, उसका रिपेयर करा दो। शहंशाह ने तो यही वाज फीलिंग, यू नो, जिसको कहा जाए कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है इसके बाद, हमको कहता है इतना पत्थर का टुकड़ा ठीक कराओ, ये तो कोई आम आदमी करा सकता है, मुझे क्यों कह रहे इतने बड़े आदमी को कि इतना छोटा काम कराओ। भाई एक किंग आपको कहे कि आप कुछ मांग लो तो उससे आप क्या मांगोगे, उसको कहोगे कि एक माचिस की डिबिया दिला दो, हा? ये तो इट्स नॉट समथिंग टू आस्क, मैच बॉक्स दिला दो। तो ये कौन सा बात है। तानसेन ने कहा महाराज कुछ नहीं, चलिए आइए। बोला चलो दिखाता हूं आपको। ओ केशी घाट पे लाए, एक टुकड़ा दिखाया, ये टूटा हुआ है, इसको रिपेयर करना है। उस वक्त थोड़ी देर के लिए हरिदास की कृपा से अकबर को दिव्य दृष्टि मिली और उसने देखा कि ये पत्थर का बना हुआ नहीं है, ये तो माणक मोतियों का बना हुआ है, और मेरे खजाने में ऐसा कुछ है नहीं जिससे इसकी रिपेयर हो सके। पूरे शहंशाह हिंद के खजाने में एक भी ऐसा हीरा माणक मोती नहीं था जिससे वृंदावन के छोटे चिंतामणि पत्थर की रिपेयर हो सके। तो वृंदावन ऐसा चिंतामणि धाम है जिसके अंदर जो चीजें बनी हुई हैं वो इस दुनिया की नहीं है, वो ऊपर की है, लेकिन वो देखने के लिए आंख चाहिए। वो आंख जिसको, एक जगह है वृंदावन में गोविंद कुंड, आपने सुना है? गोविंद कुंड वो जगह है गोवर्धन में जहां इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था। किससे अभिषेक किया था? सुरभि गाय के दूध से, जो गाय भी वहां से आई थी गोलोक से, और ऐरावत हाथी सब तीर्थों का जल लाया था, और विशेष रूप से सुरभि गाय के दूध से अभिषेक कृष्ण का इंद्र ने किया था। वो गोविंद कुंड के किनारे एक गौड़िया वैष्णव महात्मा रहता था और भगवान श्री कृष्ण का सुमरण करता था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक नया साधु भी उसके पास आके रहने लगा, और वो साधु भजन करता और सुबह 2 बार जाता कम से कम शहर में, जाके कुछ भिक्षा लाता, खाना तो पड़ेगा ना कुछ। भाई उधर तो चूल्हा जलता नहीं है साधु के पास, तो किसी के घर से मांग के लाता, एक रोटी दे दो माता जी, दूध दे दो। उसने देखा ये तो बड़ा साधु कहीं मांगने जाता नहीं, खाता क्या है। एक दिन उससे पूछ लिया, ये आस्क्ड हिम, बाबा आप कहीं मांगने जाते नहीं है, यहां कुछ पकाते नहीं है, खाते क्या है? उसने बोला खा के क्या करेंगे, ये दूध का सागर है, सुरभि गाय का दूध है, ये भगवान का चरणामृत है। मैं जाके गोविंद कुंड से जब भूख लगती है दूध पी लेता हूं, बस हो गया, मैं दूध आ रही हूं। दूध आहारी का मतलब आई जस्ट सस्टेन माई लाइफ ऑन द मिल्क। और ये मिल्क भी तो दिव्य है, सुरभि गाय का, और ये भगवान का अभिषेक का चरणामृत है।
तो उसने कहा महाराज ये तो पानी हरा हरा है, इसके ऊपर तो सारा फंगस पड़ा है, हमारे को तो दिख नहीं रहा है कुछ दूध। वो महाराज ने थोड़ी देर का लिए ध्यान करके कहा बेटा देखो अब क्या दिख रहा है। वो यंग देखे तो खीर का सागर लहरें ले रहा है, इट्स ऑल मिल्क ओशन। अब क्या है, वृंदावन में वो गोविंद कुंड है मिल्क का ओशन, लेकिन हमारी आंखों के ऊपर मोतिया बिंद हो गया, कैटरेक्ट हो गया है, हम दूध नहीं देख सकते हैं, हमको पानी दिखता है, उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन फंगस दिखता है, क्योंकि हम देखने के योग्य नहीं है, लेकिन है वो दूध, लेकिन हमको नहीं दिख रहा है। ये जो गिरिराज है, ये भगवान का कितना बड़ा भाग थे। हमको लगता है कि पत्थर का ये पत्थर है, ये पत्थर नहीं, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। तो ये वृंदावन दिव्य चिंतामणि धाम है। और उसके बाद क्या लाइन लिखा है, दिव्य चिंतामणि रतन मंदर मनोहर। ऐसे सुंदर वृंदावन में रतन का बना हुआ, हीरे मोती का बना हुआ बहुत सुंदर मनोहर मंदिर है। मनोहर का मतलब क्या है, आपने कभी सोचा है मनोहर का मतलब क्या है? मन को हरने वाला। भगवान का नाम है हरि। हरि की दो माना है, बहुत से अर्थ हैं हरि के, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने दो अर्थ कहे हरि के। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग ऑफ वर्ड हरि। पहला दुख हरि, भक्तों का दुख ताप संताप भगवान हर लेते हैं, इसलिए उसको हरि कहते हैं। बोला दूसरा क्या माना है, मनोहरि, प्रेम देई मनोहरे, इतना प्रेम देता है कि सबका मन हर लेता है भगवान। तो भगवान को कहते हैं मुरली मनोहर। मुरली बजाकर गोपियों का मन हर लिया। और इतना वृंदावन सुंदर है, उसमें रतन का मंदिर मनोहर बना हुआ है। मंदिर, वैसे मंदिर का मतलब घर भी होता है। मंदिर संस्कृत में घर को भी कहते हैं। इसका मतलब बहुत सुंदर जो वृंदावन में घर बने हुए हैं वो रत्नों के बने हुए, वो हीरे माणिक मोती के बने हुए। महाराज नंद बाबा के महल के अंदर कोई लाइटें वाइटें नहीं लगी हुई थी, कोई फिटिंग नहीं थी इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली का बिल नहीं आता था। वो ऐसी मणियां लगी हुई थी, नहीं एयर कंडीशन भी नहीं लगा था, वृंदावन गर्म है। वो मणियां ऐसी थी, गर्मी में ठंडक देती थी, सर्दी में गर्म हो जाती थी, और दिन में रोशनी की जरूरत नहीं है तो जरूरत नहीं, रात लग जाती थी। ऐसे हीरे माणिक थे जो अपने रोशनी से सबको प्रकाश कर रहे, कोई अलग रोशनी की जरूरत नहीं थी। तो रतन मंदिर मनोहर। बोला फिर क्या है वृंदावन में, ऐसे बहुत से सुंदर घर बने हुए। बोला उनके बीच में आवृत कालिंदी नीरे, कालिंदी जमुना का नाम है। और आवृत का मतलब घिरा होना, चारों ओर से घिरा हुआ। इसका मतलब ये हंस कौन है, परमहंस साधु है, जो वृंदावन में जमुना के किनारे रहते हैं, जो भगवान की लीलाओं का आस्वादन करते हैं। ये कहते हैं यत्र कथा सुधा, ये देवता लोग कहते हैं जहां भगवान की मधुर कथा की सरिता नहीं बहती है, अमृत की गंगा नहीं बहती, नो रिवर ऑफ नेक्टेरियन पैस टाइम ऑफ सुप्रीम वैकुंठ कथा सुधा अपगा, वो जगह जहां भगवान की कथा की गंगा नहीं बहती है। साधु यत्र न, जहां भगवान के भक्त उस किनारे नदी के किनारे नहीं रहते हैं। जहां यत्र न महोत्सव मक्खा, जहां हरि कीर्तन और भगवान के जन्माष्टमी जैसा महोत्सव न हो। सुरापि लोकम न सेव्येत, वो भले कौवे देखे हैं हमने, कौवे और हंस में बहुत बड़ा अंतर है। और फिर क्या लिखा है, काले आवृत कालिंदी नीरे, राजा हंस केली कौरे, ताहे शोभे कनक कमल। और उस
सुंदर जमुना के बीच जहां रतन का मनोहर मंदिर है, उसके बीच में एक कनक कमल है। कनक का मतलब क्या है? सोने का कमल है। एक सोने का सुंदर स्वर्ण रंग का कमल है। अब दूसरा लाइन को पढ़ेंगे। वो कमल क्या है? कमल है योगपीठ। योगपीठ का मतलब वृंदावन का सेंटर। वो वृंदावन में ही है योगपीठ, जो वृंदावन का सेंटर कहलाता है। और मध्य हेम पीठ अष्टदले भजति अष्टदले प्रधान नायिका। तारा मध्य हेम पीठ अष्टदले भजति अष्टदले प्रधान। तारा मध्य रतनासने बसिना छेन दोई जन श्यामा संगे सुंदरी राधिका। अब ये पर्दा खुलेगा जो आप देखेंगे, उसका यहाँ वर्णन है। तार मध्य मतलब वो वृंदावन जो रम्य स्थान है, जो दिव्य चिंतामणि धाम है, जहां जमुना के चारों ओर से, जमुना से घिरे हुए बहुत सुंदर मनोहर मंदिर हैं रतन के, और जहां हंस केली कर रहे हैं, और जहां एक सोने का कमल है, वहां तारा मध्य हेम पीठ अष्टदल, उसके बीच में एक सोने का सुंदर अष्टदल का सिंहासन है। अष्टदल का मतलब क्या है? दल किसको कहते हैं? कमल के पत्ते को कमल दल। दल का मतलब कमल का पत्ता। तो 8 पत्तों वाला कमल है, और 8 पत्तों वाले कमल के ऊपर क्या है? अष्टदले प्रधान नायिका। उन 8 कमल के स्वर्ण दल के ऊपर 8 मुख्य सखियां बैठी हुई हैं, ललिता, विशाखा आदि। तुंग विद्या, क्या क्या नाम है? ललिता, विशाखा, तुंगलता, चित्रा, इंदुलेखा, सुदेवी, रंगदेवी, 8 सखियां बैठी हैं अष्टदल के ऊपर। और फिर क्या लिखा है? इन सब 8 गोपियों के अपने वृंदावन में गांव है। एक दिन लगता है पूरा। सुबह 5 बजे निकलो वृंदावन से, रात को 10 बजे लौटोगे 9 बजे। 8 इन सखियों के गांव का दर्शन कराते हैं। इसको कहते हैं अष्ट सखी गांव का दर्शन। ललिता का गांव ऊंचा गांव है, ऐसे सब सखियों के अपने अपने गांव हैं। तो वहां ये सखियां उन अष्टदल के ऊपर बैठी है। उसके बीच में क्या है? और फिर लिखा क्या है? आहा तारा मध्य रत्नासन, रतन आसन। उसके बीच में एक रतन का बना हुआ बुंदर सिंहासन है। आसन का मतलब सिंह आसन, बहुत अच्छा बैठने का स्थान। बसिया छे न दुई जन, उसके ऊपर 2 आदमी बैठे हैं। कौन है वो? श्याम संगे सुंदरी राधिका। शाम के संग में सुंदरी राधिका बैठी है। वो आप देखेंगे तो बहुत सुंदर वृंदावन का दर्शन है। और बीच में वो जो चारों ओर कालिंदी से घिरे हुए, बीच में एक जो हंस के रूप में बना हुआ है, उसके अंदर राधा और कृष्ण बैठे हुए। ये मेडिटेशन है कि ये कौन कह रहा है। ये आखिरी लाइन सुने क्योंकि टाइम अपना लिमिटेड है। एक आखिरी लाइन पढ़िए।
नरोत्तम दास ठाकुर क्या कह रहे हैं? ओ रूप लावण्य, ये जो भगवान हम दर्शन करेंगे ना, ये रूप कैसा है भगवान का? लावण्य। लावण्य कहते हैं, रूप लावण्य। ये एक संस्कृत में इसको कहा जाए कि सुंदरता के लिए एक विशेषण है, एक स्पेशल एडजेक्टिव है टू एक्सप्लेन द ब्यूटी ऑफ समबडी। लावण्य, लावण्य का मतलब जिसको देखने से हम उसको देखने में इतने मगन हो जाएं कि हमको दुनिया ही भूल जाए। इतने सुंदर है कि वहां से आंख हटा ही नहीं सकते। एक बार उसको देख लें। ऐसे रूप गोस्वामी ने एक वृंदावन में जाने के लिए इसको एक श्लोक लिखा है। उस श्लोक का भाव ऐसा है, अरे भाई कभी वृंदावन मत जाना। बोला नहीं जाना तो जरूर है। बोला अगर चले जाओ तो जमुना के किनारे कभी मत जाना। नहीं जमुना तो स्नान करने जाएंगे। नहीं जमुना के किनारे जाना पड़े तो बंसी बट के कभी नहीं जाना। बोला वो तो रास्ते में आएगा ही। बोला वहां अगर जाओ तो वहां एक सांवला सा बांसुरी बजाता है, उसको कभी मत देखना। बोला क्यों? बोला उसको देख लिया तो तुम्हारा दुकान मकान घर सब चौपट हो जाएगा, तू पागल होके वहीं रह जाएगा। दिस इज रूपा गोस्वामी, इट्स कॉल्ड व्याज अस्तुति। दिस इज कॉल्ड व्याज अस्तुति। इसका मतलब है कर रहे हैं कि नहीं देखना, लेकिन उनका अर्थ है उसी को देखना है। ये स्पेशल पोइट्री है। तो लावण्य रूप ऐसा है, एक बार उसको देखोगे ना फिर दुनिया को देखने की इच्छा ही नहीं होगी। भगवान को देखने के बाद दुनिया में क्या रखा है देखने को? कुछ देखने के लिए फिर रह नहीं जाता और फिर कुछ बोल भी नहीं पाएगा। वो इतना सुंदर है भगवान। तो रूप लावण्य, ओ रूप लावण्य, भगवान जो राधा कृष्ण बैठे हुए हैं वो बहुत सुंदर लावण्य उनका रूप है। और अमीय परिछे खासी, अमीय परिछे खासी, लावण्य रूप राशि। लावण्य रूप लावण्य राशि। राशि का मतलब रसमय रूप है। उसको देखोगे जैसे पियोगे, पीते जाओ। भगवान को आंखों से पिया जाता है। आंखों के प्याले बनाकर भगवान के रूप को पीते हैं। कानों के प्याले से भगवान की कथा को पीते हैं। तो पियो उसको। ये मुझे खांसी लग रही, खांसी का मतलब बहुत अच्छी। ये जो भगवान की छवि है मुझे बहुत अच्छी लग रही है। खांसी जो शब्द है मेरे ख्याल में कहीं आपने सुना है, ये खासा है का मतलब खास जहां से निकला है। खास का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, खांसी का मतलब जो बहुत अच्छा लगे। और फिर कहते हैं क्या कर रहे हैं दोनों? हास परिहास संभाषणे। और राधा कृष्ण आपस में हास परिहास कर रहे हैं, एक दूसरे से विनोद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं प्रेम से। जो बातें कर रहे हैं ना वो मैं सुन नहीं रहा हूं, नरोत्तम दास कह रहे हैं, लेकिन मैं उनके चेहरे से देख रहा हूं कि वो कितने प्रसन्न हैं। अब नरोत्तम दास अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं। वो इच्छा हम सबके लिए है। नरोत्तम दास कहे नित्य लीला सुखमय। ये भगवान की जो लीला है ना यही सुखमय है। दुनिया में और कुछ सुखमय नहीं है। तो कहां से मिलेगी? क्या करूं? नरोत्तम कहता है सदा स्फुरिका मय मोर मने। भगवान मेरे मन में ये आपकी लीला, ये पूरा वृंदावन, ये कनक कमल, ये अष्ट दल, ये अष्ट सखियां, ये राधा श्याम आपस में जो मुस्कुरा के बातचीत कर रहे हैं, ये मेरे मन में सदा के लिए बसा रहे। ये मेरे मन में बसा रहे, ये नित्य लीला ही मेरे मन में बसी रहे तो मेरा मन कहीं और जाएगा ही नहीं। और मेरा मन वहीं कहीं और जाएगा नहीं तो वृंदावन में ही बसा रहेगा। और मन वृंदावन में बसा रहा तो हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। तो अब आप जो देखेंगे आज इसको ऐसे देखना कि आप वृंदावन देख रहे हो, राधा कृष्ण को नौका विहार करते हुए देख रहे हो। नौका विहार तो भगवान की
नौका विहार की लीला यह है कि दोपहर के समय रोज भगवान को 12 बजे राधा कुंड में जाते हैं, मानसी गंगा पे जाते हैं। राधा और कृष्ण सखियों के साथ बैठ के नौका में एक तरफ से दूसरे तरफ जाते हैं। ये किसी को दिखता नहीं है, आज भी हो रही है लीला, लेकिन दिखती किसी को नहीं है। एक बार गोपियों को मक्खन दूध दही लेकर दूसरे पार जाना था, मानसी गंगा के। कोई नाव नहीं थी, तो एक नाव लेके एक नौका वाला आ गया। गोपियों ने सारे मटके उसके अंदर रखे। वो नाव चलाने वाला थोड़ा बीच में जब गया तब नाव चलाना बंद कर दिया। बोला बहुत भूख लगी है, मक्खन मक्खन खिलाओ, दूध दही खिलाओ, उसके बाद चलाऊंगा। नहीं चला सकता हूं, बहुत भारी है, नहीं चल रही है, इतना भार मार सारा आपने भरा है। सबने कहा थोड़ा खा लो, थोड़ा दे दिए, खा लिया। बोला नहीं अब तो नौका डूब जाएगी, ये सब फेंको बाहर, बड़ा भारी हो गया ये तो, नहीं तो जिंदा नहीं बचोगे। और तब तक आंधी तूफान आया। आंधी तूफान आया तो नौका हिलने लगी। उस हिलती हुई नौका में बोला ये सब फेंको, सब फेंको, कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं बचेगा। और ऐसे बहुत जरा हिलने लगी। वो राधा रानी जो बैठी थी वो नौका वाले के ऊपर जाके गिरी, और जैसे नौका वाले के ऊपर गिरी और नौका वाले ने उसको पकड़ लिया तो राधा रानी ने पहचान लिया ये नौका वाला नहीं है, ये कृष्ण है। नहीं, ये सारा चक्कर इसका है, ये सारा चक्कर इसने किया है और हमको नौका के बहाने यहां से अंदर लाया, मटके सब फेंकवा दिए कि भाई दुनिया का सब चीजें छोड़ दो। तो ऐसे ऐसे नौका विहार में भगवान अद्भुत उनके साथ लीलाएं रोज करते हैं। ये वृंदावन रम्य स्थान है। हमारा ये स्तर नहीं है कि इसको सुनने का भी अधिकार रखें, लेकिन आज कैसे भी वर्ध गोपाल प्रभु ने, कल हम गए थे किसी के घर तो ये भजन गाया था इसके ऊपर, वहां कथा की थी, तो बोला आज थोड़ा कृष्ण लीला का रस आस्वादन करें। और उसे नहीं करेंगे तो आखिर कब करेंगे? एक दिन तो हमको भी आगे बढ़ना पड़ेगा ना। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला आपको कैसे लगी? हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिनट है, आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? एनी क्वेश्चन और कमेंट? 58 मिनट्स हमने आपका सेवा कर लिया। कोई क्वेश्चन है, कमेंट है? वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि वृंदावन रम्य दिव्य चिंतामणि। इतना ही गाते रहोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। ये आपका दिल में कभी ये भाव आ जाए ना। और कई बार हमने सुना ये भजन प्रभुपाद जी के समय में उनका एक बहुत प्रिय शिष्य था जो बहुत बड़ा म्यूजिशियन था, और वो ये भजन गाया करता था, वृंदावन रम्य। प्रभुपाद सुनते थे और प्रभुपाद कहते थे ये भजन जब सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि हम वृंदावन में है, एटमॉस्फियर ही चेंज हो गया है। विष्णु जन स्वामी का ये बहुत फेवरेट भजन था, जो प्रभुपाद जी के पहले सन्यासियों में थे। विष्णु जन स्वामी बहुत मधुर गाते थे, और वो 8 घंटे रोज कीर्तन करते, 8 आवर्स ए डे मिनिमम। और मृदंग बजाते थे, उनकी उंगलियां वो मृदंग बजाते बजाते ऐसी पक गई थी कि यहाँ चवानी अठानी बांधते थे ताकि मृदंग को लगते लगते वो पक गए थे। एक दिन लोग रोड से लोग जा रहे थे, ये कीर्तन के बाद तुम लोग कुछ नहीं कम काम करते हो, बेकार का यहीं बैठे रहते हो। तो महाराज ने उंगली के हाथ से हटा के देखा, देखो ये मेहनत नहीं करते, ये मजदूरी के निशान नहीं है। इतने से आपके है किसी के हाथ में निशान इतने मजदूरी के? और उस महाराज की एक और विशेष खूबी थी, वो सुबह जब मंदिर में कीर्तन करने जाने से पहले कहते थे 2 डजन सिंपली वंडरफुल मेरे को 2 डजन लड्डू चाहिए। वो जेब में पड़े हैं भाई, 1 घंटा आधा घंटा कीर्तन के बाद 2-4 लड्डू खाएगा फिर कीर्तन होगा, बिना लड्डू के कीर्तन नहीं होगा। तो महाराज का ये भजन महाराज का आप देखें कहीं पड़ा होगा पुराने महाराज के सॉन्ग्स में, वृंदावन दिव्य स्थान, वृंदावन रम्य स्थान। और प्रभुपाद was very fond of this bhajan when it was sung by विष्णु जन स्वामी। तो ये भजन कैसे, परसों मैंने सुना था यहाँ, पहले भी सुना पढ़ा देखा, लेकिन इसका उसी दिन स्पेशली जस्ट क्लिक मेरा के जैसे हार्ट में क्लिक किया
कि ये वृंदावन कितना सुंदर है, इसको कैसे लिखा है। नरोत्तम दास ने वृंदावन सारा देखा है, कम से कम हम गा के सुन तो लें। वो उसके बाद आज 3 दिन हुए मेरे दिमाग में ये भजन ऐसे चल रहा है। कल भी कहीं गया था, इसी के ऊपर कथा किया था, आज भी इसके ऊपर कथा है। आप चाहें तो 1 महीना इसके ऊपर कथा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतनी लीलाएं, जो लीलाएं सब इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ये तो सारा ही वृंदावन है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज वृंदावन को याद कराया, वृंदावन की लीला को याद कराया। और यही कृष्ण भावना का उद्देश्य है कि हमारा मन कृष्ण में रमा रहे। इसी को कृष्ण कॉन्शियसनेस बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।